So, in this lecture, we are going to study joint architecture, basically the classification of joints. So, joints are classified into different types. First, immovable joints, slightly movable joints, and freely movable joints. अब जो immovable joints हैं जो कि allowed नहीं करते कोई भी movements, so they are called immovable. And another name for these immovable joints is synarthrosis. Synarthrosis, right? Now, next category is slightly movable joint, जो कि allow करते हैं little bit movements. और जो दूसरा नाम है इसका वो है amphiarthrosis, right? You need to remember these names as well. उसके बाद थर्ड कैटेगरी है freely movable joints. और जो freely movable joints हैं, as the name indicate, allow करते हैं कि उसमें movements हो सके freely. And the other scientific name for these joint वो है जी diarthrosis. Okay, now you need to remember these scientific names as well: synarthrosis, amphiarthrosis, diarthrosis. Next, let's study the first category of joints, which is immovable joints. As we have already discussed कि भाई immovable joint का दूसरा नाम synarthrosis भी होता है. और अभी हम पढ़ चुके हैं जो allow नहीं करते कोई भी movement, or they actually work as a shock absorber. तो पहली एग्जांपल है immovable joints की, वो है sutures of the skull. ठीक है, ये fibrous joints होते हैं, as you can see. ये this is the example of synarthrosis or immovable joints. You can see these sutures of the skull. ये आपका skull है, ये आपकी frontal bone है, ये आपकी parietal bones है, this and this, और ये आपकी occipital bone है. तो इन के दरमियान में जो joints बन रहे हैं उनको हम sutures बोलते हैं, और ये synarthrosis यानी immovable joints की example है. और मैं आपको ये बता देती हूँ इन sutures के नेम क्या है: coronal suture and sagittal suture. Next example of immovable joint is syndesmosis. ठीक है, ये ऐसे joints हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं in the form of dense fibrous tissue, like for example tibiofibular joint. अब tibiofibular joint जो है वो superior भी होता है, inferior भी होता है, और radioulnar joint जो कि superior भी होता है, inferior भी होता है, एंड coracoacromial joint जो कि बेसिकली जुड़ा होता है coracoacromial ligament से. So these type of joints are called syndesmosis. You can see the picture. ये देखिए, ये जो अब joint बन रहा है between tibia and fibula, ये जो fibrous tissue ने से connect किया है उसे बोलते हैं syndesmosis. कि this is radius and ulna. ठीक है, they are joined by a cartilage. So these are called fibrous tissue. So these are called syndesmosis. The next category जो हम पढ़ेंगे वो है slightly movable joint. As you have already know that I have already discussed the name of these joints are called amphiarthrosis. पहले बता चुके हैं. ठीक है, तो amphiarthrosis basically cartilaginous joints हैं जो कि permit करते हैं more motion, यानी ज्यादा movements हो सकती है इनमें as compared to synarthrosis में जो कि non movable joints थे. अच्छा जी, अब इसकी पहली एग्जांपल जो है वो है synchondrosis. ठीक है, जिसमें क्या है आर्टिकल बोन्स आर हेल्ड बाय हेलाइन कार्टिलेज. अब इसमें क्या है, जो बोन्स हैं वो हेलाइन कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं. एन एग्जांपल is sternocostal joints and epiphysis plates. Now you can see this sternocostal joint. This is your sternum. अब ये देखें, ये जो जॉइंट बना हुआ है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट. this ठीक है, these are joints which are held by haline cartilage. Number 2 example is symphysis. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क होती है जो सेपरेट करती है जॉइंट्स को. अब इसकी एग्जांपल है वर्टिब्रल जॉइंट्स एंड प्यूबिक सिम्फिसिस. अब वर्टिब्रल जॉइंट्स कौन से हैं, जो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में होते हैं, ये ठीक है, ये. और प्यूबिक सिम्फिसिस ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क है
जो सेपरेट कर रही है या ज्वाइन कर रही है जॉइंट को. सो ये एग्जांपल है सिम्फिसिस की. Pubic symphysis and the joints between vertebral bodies, not the spinous process or facies joints, the vertebral bodies. So the next category is freely movable joints. और freely movable joints को हम diarthrosis भी कहते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, इसमें क्या होता है जी, जो articulating bones हैं वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होती हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल से, synovial membrane से और synovial fluid से. ठीक है, we will discuss this synovial joints in another lecture, but today we are discussing freely movable joints. So जो पहली कैटेगरी है synovial joints की जो कि freely movable होते हैं वो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स एक्चुअली, जिन ऐसी बोन्स या ऐसे जॉइंट्स जिनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है, राइट. तो उसकी एग्जांपल है intermetatarsal, intercarpals, intertarsals and faces joints of vertebrae. तो ये एग्जांपल है ग्लाइडिंग जॉइंट्स की. ये देखिए, ये फेसेड जॉइंट्स है, ये एग्जांपल है, इसमें ग्लाइडिंग हो सकती है. ठीक है, ये है कार्पल बोन्स, इनमें ग्लाइडिंग हो सकती है. खुद से नहीं होगी, आपको करके देखनी पड़ेगी, यानी आप पकड़ेंगे कार्पल बोन्स को और ग्लाइड कर सकते हैं. सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है और कोई मूवमेंट नहीं हो सकती. ठीक हो गया. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट, और यू कैन से ग्लाइडिंग जॉइंट्स. द नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हिंज जॉइंट. अब हिंज जॉइंट क्या होता है, तो इसमें एक आर्टिकुलर बोन कन्वेक्स होती है और दूसरी कनकेव होती है. तो एग्जांपल है ह्यूमरो अल्नर, यानी आपका एल्बो जॉइंट इसकी एग्जांपल है. इंटरफिलेंजियल जॉइंट इसकी एग्जांपल है. दिस इज योर एल्बो जॉइंट. ठीक है, एक सरफेस कन्वेक्स है और दूसरी कनकेव. यहाँ पे ह्यूमरस जो है वो कन्वेक्स है और जो अल्ना है वो कनकेव है, राइट. दूसरी एग्जांपल क्या थी जी, इंटरफिलेंजियल जॉइंट, जो कि फिलेंजीज के बीच में बन रहा है. दिस example of hinge joint. The next category of freely movable joint is a pivot joint. Pivot joint ऐसे joints होते हैं जो rotation allow करते हैं सिर्फ एक axis में. ठीक है, जैसे एटलेंटो एक्सियल जॉइंट या प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स, जो कि सिर्फ एक एक्सिस में मूवमेंट को अलाउ करते हैं. जैसे ये देखें, ये है जी आपकी एग्जांपल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, पिवट जॉइंट की. अब ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बेसिकली ये बना हुआ है, ये है C1, ये है C2. अब एटलिस और एक्सिस का आपस में जो जॉइंट है उसे हम पिवट जॉइंट कहते हैं, और इसमें सिर्फ मूवमेंट हो सकती है, ये देखें, एक एक्सिस में, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं. ठीक है, अब ये है जी रेडियो अल्नर जॉइंट. दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना, एज यू कैन सी दिस. तो इसमें भी मूवमेंट सिर्फ एक एक्सिस में होगी जो कि रोटेशन है. इतनी मूवमेंट नहीं होती, बहुत कम होती है. ठीक है, द नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्डोलाइट जॉइंट. कॉन्डोलाइट जॉइंट में बेसिकली होता है कि एक आर्टिकुलर बोन इज ओवलर कन्वेक्स शेप और दूसरी कनकेव होती है. इसकी एग्जांपल है रेडियो कार्पल जॉइंट यानी रिस्ट जॉइंट, और दूसरी एग्जांपल है सेकंड से लेकर फिफ्थ मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट. ठीक है, इसमें देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्डोलाइट जॉइंट, जिसमें रेडियस जो है वो जॉइंट बनाती है कार्पल बोन्स के साथ, स्केफोइडल यूनिट के साथ. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्डोलाइट जॉइंट, जिसमें देख लें अब इसमें मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की भी एग्जांपल है. ये उन्होंने बताया हुआ है, दिस इज मेटाकार्पल, दिस इज फिलेंजीज. तो जो मेटाकार्पल का जो सरफेस है वो कन्वेक्स है और फिलेंजीज कनकेव है, right? This is the example of condylite joint. Next example is saddle joint. अब सैडल जॉइंट क्या होता है, आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े के ऊपर जो सीट होती है वो सैडल शेप की होती है, यानी घोड़ा उसके ऊपर और उसके ऊपर बंदा बैठ जाए, तो वो भी कनकेव है, और जो बंदा बैठेगा उस या सीट होगी उसकी वो भी कनकेव होगी. ये मतलब आपके इट्स द सीट ऑफ राइडिंग सैडल, इस तरह की होती है. इसे आपको मैं समझाती हूँ. इसमें कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, like you can see this picture. ये देखिए, this is concave as you can see, और ये देखिए ये भी उसी तरह है. एग्जाम्पल ऑफ दिस.
फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो बेसिकली थंब का जॉइंट होता है, वो एग्जांपल है सैडल जॉइंट की. So I have added pictures to make you understand better about the saddle joint. Saddle joint मैंने आपको वैसे बताया कि जो घोड़े की सीट की जो शेप होती है वो सैडल होती है, ठीक है. तो जो घोड़े की सीट की तरह का ये जॉइंट होता है. As you can see this ऐसे और ऐसे. ये देखें, ऐसे ही होती है सैडल शेप, seat of a saddle, or you can say a saddle. This this joint is like seat of a horse seat or saddle. The next joint is ball and socket joint, which is a category of freely movable joint, which is also called diarthrosis. अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है जी, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इट्स वेरी कॉमन एज यू ऑल नो. इसमें आता है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट. This is ball and this is socket. Yani head of humerus articulates with a glenoid cavity, ठीक है, of scapula. And either in hip joint, the head of humerus articulates with the acetabulum of hip bone. This is called ball and socket joint. So this is all for today. If you have any question, you can email me. Thank you.